सारे एजुकेटर्स और क्रिएटर्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। Zoom, webhooks, WhatsApp, Mailchimp, Shopify, Google Ads, Google Analytics, Google Drive, Google Sheet, इतने सारे टूल्स कैसे करोगे मैनेज? इतने सारे कैसे करोगे मैनेज? इतने सारे कैसे करोगे मैनेज? ये सारे कैसे करोगे? Hello, hello, welcome. हेलो, वेलकम। आवाज आ रहा है सर? हेलो, एम आई ऑडिबल सर जी? इज माय वॉइस क्लियर? बच्चों, बंदा खुशो की नहीं, बंदा खुशो की नहीं। वेरी गुड। चलो 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 चलो। सो आफ्टर दिस लाइक बीईएल के बाद हम इसरो का प्लान कर रहे हैं। विल डू इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, विल डू इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, डोंट वरी। तो लाइक वॉइस रिपीट हो रहा है? इज माई वॉइस क्लियर? अरे कुछ तो बोलो रे।
ऑल ओके ना, ऑल फाइन, बंदा खुद सुखी नहीं। चलिए चलो चलो चलो, हम शुरू करते हैं सर अब खेल। सो हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन सर्स? जस्ट रिवाइज नोट्स, अभी कुछ करने का नहीं है सर अभी, नाउ जस्ट रिवाइज, ठीक है? ओके, आई एम स्टार्टिंग सर विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके सर, चलो 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 चलो। So again, I am telling you, I tried my level best to include questions from all subjects, सारे subjects के, design, production, then thermal, everything. Okay, चलो start करें सर। मैं कोशिश करता हूं कि see that your time is not wasted. चलो, a closed coil helical spring has 15 coils. If five of this, if 5 coils of this spring are removed, मतलब initially there were 15 coils. Now on this spring 5 coils are removed. So what? How many coils are left? When you remove 5, therefore it is 10 coils. ठीक है sir. Now he is asking the stiffness is what? देखो sir, you know, delta is equal to 8w d cube n by g d power 4. Okay, what is the stiffness, sir? W by delta is stiffness, and that is given by w by delta is k. It is g d power 4 by, correct na sir, w by 8 d cube n. Very good, sirs. You are not changing the material. Suno, sirs. You are not changing the material, so G will remain same. You are not changing the diameter, D will be same. You are not changing the mean coil diameter, D. So all are same. So I can write K is inversely proportional to number of coils. K is inversely proportional to number of coils. ठीक है, sirs. And because he has not said K, the coil diameter is varying something, कुछ नहीं बोला तो हम same ले लेंगे. So this can be written as K2 by K1 is equal to ulta N1 by N2. So final stiffness is equal to initial stiffness N1. What is N1, sir? 15. And what is N2, sir? 10. So this is 1.5. So K2 is equal to 1.5 times K1. So the modified spring will have increase to 1.5 times. Is B option correct, मेरे प्यारे बच्चों? Is B correct, sir? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है, राइट। नाउ फॉर सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ओके, नाउ ठीक है सर, ओके, सिग्मा 3 is 0, ठीक है सर। These are what is the physical boundary of Rankine failure theory? Okay, मेरे प्यारे बच्चों, you know my dear students, I take sigma 1 and sigma 2, ठीक है सर जी। This is minus sigma 2 minus sigma 1. Okay, sir. According to Rankine's theory, failure will occur when the material reaches, when the stress in the material reaches the major principal stress. मतलब the yield stress is equal to major principal stress. तो आप देखो सर, ध्यान से सुनिए सर। Whenever sigma 1, sigma 2 are same, you get a square. Actually, Rankine theory का आपको square आता है सर ऐसा. If sigma 1 is sigma 2. If sigma 1, sigma 2 are not same, means two sides are not same. So what do you get, sir? You get a rectangle. Is it okay, sir? You get a rectangle. When both are same, if sigma 1, sigma 2 is same, आपको क्या मिलता है सर? मान लो, समझ में आ रहा है सर? When both are not same, you get something like this, a rectangle. So when if both are same, then it will be a square. So ये rectangle है सर. ये simple question है सर. ठीक है, अब बताओ. Anyone? फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम। कम ऑन, हाँ नंबर डाल देना बेटा अगर आप आंसर दे रहे हैं। इफ यू आर गिविंग आंसर प्लीज नंबर इट।
ठीक है, टेक दिस क्वेश्चन, कम ऑन कम ऑन। ये वाला लीजिए सर, इधर देखो, ये वाला लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, someone said see, and you know my dear students, whether it is a bearing or roller bearing, the life of a bearing in million revolution is given by the basic dynamic capacity C by actual load P power K, where K is 3 for ball bearings and 10 by 3 for roller bearings. Definitely, roller bearings have line contact. Their life is more compared to ball bearings because it is point contact. So 10 by 3 is more. तो ये हो गया सर. But क्या पूछ रहा है सर? L1 L2. For a given bearing, the basic dynamic capacity will be constant. So this can be written as, my dear students, L into P power K, you bring it to the side, is C power K. ठीक है, ये तो फॉर गिवन बेरिंग ये तो कांस्टेंट है, तो आई विल राइट, एंड L1 P1 पावर K, दिस इज अ न्यू कांस्टेंट, L1 P1 पावर K इज L2 P2 पावर K. ओके सर, तो आपको क्या चाहिए, देखो L2 बाई L1 इज इक्वल टू, L2 बाई L1 इज P1 बाई P2 पावर K. I think option C is correct. This is the most regularly asked question, sir. Is this okay? आ गया सर? बोलिए प्यारे बच्चों, बोलिए, इज इट ओके? हाँ, वेरी गुड. टेक दिस, टेक दिस. The number of instantaneous center for a 8-link mechanism. You know, my dear students, whenever you want instantaneous center, it is actually combination of two. Instantaneous center of 1 with respect to 2 or 2 with respect to 1. For example, let us take two links, say they are pin jointed. तो if let this link be 1 and let this link be 2, चलो ठीक है सर. देखो, the same figure I am showing you here. देखो, ये 1 है, ये 2 है. सुनो carefully. So if you are fixing 1 and rotating 2, what will be the instantaneous center? It will be the instantaneous center of 2 with respect to 1. मतलब the link 2 is rotating about this, so this will be the instantaneous center of 2 with respect to 1. So now let us fix a link 2 and rotate 1. So if you fix 2 and rotate 1, it will be here only. So therefore it is the instantaneous center of 1 with respect to, whether it is I12 or 21, both are at the same point only. Therefore, whenever you see instantaneous centers, it is not permutation, it is combination. Combination का मतलब whether it is 1-2 or 2-1, whether it is 1-2 or 2-1, वो तो same ही है, इसलिए we take combination. So combination of what? Two links. If a mechanism has n number of links, so the number of instantaneous centers are nc2, because हर मर्तबा हम दो लेते हैं सर. So how many links are there? 8 links. तो what is देखो, अगर हम ncr को expand करेंगे, it will be factorial n by factorial r into n minus r factorial. Okay, fine, no problem. Is it correct, sir? तो यहाँ पे r कितना है सर? 2 है, तो this will be factorial n by r is 2 factorial is 2 only, and n minus r is 2 factorial. So this can be written as n into n minus 1 into n minus 2 factorial by n into n minus 2 factorial. So ये 2 है सर, ये 2 है, तो n minus 2 गया, तो आंसर is n into n minus 2. Just you should remember n into n minus 1 by 2. So number of instantaneous centers are n into n minus 1 by 2. So it will be 8 into 8 minus 1, because the number of links are 8. So therefore it will be 4 into 7. 8 minus 1 is 7. ये 4 है, तो therefore it is 28. So option B is correct. Is it correct मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, is it correct? है माधव शर्मा, there is a chance. माधव शर्मा, there is a chance. Yes, है रे बाबा. चलो ये ले लो, ये ले लो सर. कम ऑन विदाउट वेस्टिंग टाइम, यू शुड पार्टिसिपेट सर. आप सब लोग पार्टिसिपेट करना है सर, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों. And you know very well, the efficiency of the pipeline is given by
H minus HL by H. ठीक है. And what is he saying? The maximum, if 1/3 is available head through pipe is consumed by friction. So he has given the head loss is given as 1/3 of the total head. This is given as 1/3 by H. तो ये कितना होगा सर? तो H कॉमन ले लेना. 1 minus 1/3 होगा. So this will be 2/3. So this can be written as 0.6667 और 66.67%. ये आंसर सही है ना? बोलो सर जी. देखो सही चल रहा है. एक बार कमेंट करके बोलो सब लोग. क्या क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे? देखो जब मैं इसरो का कंडक्ट करूंगा तब पता चलेगा. यू विल अंडरस्टैंड. सडनली कैसा शिफ्ट करूंगा सर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को. यस यस यस. चलिए ये वाला लीजिए. ये वाला लीजिए सर. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. विदाउट वेस्टिंग टाइम लीजिए सर से. बहुत बढ़िया है सर. बहुत लेट लाए. बहुत बढ़िया. तो मत देखो बेटा. अगर लेट लाए हो तो मत देखो. मेरे कंस्टेंट्स कभी देखे आप? हैव यू एवर सीन माय कंस्टेंट्स? हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आई एम टेकिंग? डिस्पाइट ऑल दिस आई एम फाइंडिंग आउट टाइम. आपको पता है सर बहुत लेट लाए. मत देखना बेटा. अगर आपको नहीं देखना है तो प्लीज डोंट सी. समीर राजा प्लीज माफ करो. मत देखो सर. क्योंकि ना मैं कभी भी लेट ही आता हूं. आप लोग सब लोग टाइम पे रहते हैं. Now, look at sirs. This is a fixed link. Okay. OA is given as 3. B is given as 5. BC is given as 6. OC is given as 7. ठीक है sir. Now, observe clearly. Can I write this as the shortest link? बिल्कुल सर. इसको shortest link लिखेंगे. Can I write this as the longest link? Yes sir. अगर ये shortest longest है, other two will be P and Q. एक बार देखना सर. What is the sum of the shortest and longest? It is 3 plus 7, that is 10. What is P plus Q sir? P plus Q. P is 5, Q is 6, तो 11 आ रहा है. So therefore 10 is less than 11 or S plus L is less than P plus Q. So is the Grashof condition satisfied sir? Is the Grashof condition satisfied sir? Yes, 100% satisfied sir. So whenever the Grashof condition is satisfied, definitely you know very well, one link will rotate completely. ये तो minimum है. So I told very clearly in the class, always remember that completely rotatable joints are on the either side of the shortest link. Shortest link के either side completely rotatable. मैं क्लास में derive करके भी बताया सर. इतना beautiful क्लास लिया था. सब लोगों को पता है. तो this is the shortest link. तो this is completely rotatable. This is एक सेकंड. हेलो. मैं क्लास में हूँ. यूट्यूब सेशन में हूँ. ठीक ठीक ठीक. ओके ओके. देखिए देखिए सर. प्यारे बच्चों देखो ये एक है और ये. दीज आर कंप्लीटली रोटेटेबल. क्या ये कंप्लीटली रोटेटेबल है? इफ दिस इज कंप्लीटली रोटेटेबल, ये जॉइंट पूरा रोटेट करेगा तो ये होगा आपका क्रैंक. आपको क्रैंक का डेफिनेशन तो पता है ना? एनीथिंग अगर ये पूरा रोटेट करेगा बट इफ इट इज नॉट रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, इट इज नॉट कॉल्ड एज अ क्रैंक. बी केयरफुल. किसी को भी क्रैंक मत बोलना. और दिस इज नॉट कंप्लीटली रोटेटेबल जॉइंट, तो ये क्या करेगा सर? दिस विल रॉक. सो दिस इज क्रैंक एंड ऑसिलेटर और क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा. क्रैंक रॉकर. एनीवन गॉट द वैल्यू ऑफ सी? किसी को सी मिला रे बाबा? क्लियर क्लियर. अरे यार बोलो. क्लियर. अरे आपके कोई कमेंट्स ही नहीं आ रहे. यस सर क्लियर. बहुत बढ़िया. ये देखो. आंसर दीजिए आंसर दीजिए आंसर दीजिए. डा 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 डा.
बहुत लैग हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है। सही है, राइट। नाउ एनीवन क्वेश्चन नंबर, देखो, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। तो k is a spring constant, x is extension. So work is proportional to square of the extension is square of the extension. देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे सर। हाँ, सी आ रहा है। ए क्या पूछा है सर? वर्क। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वो है पक्का, इज ए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ये वाला बताओ। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम फॉर लीनियर स्प्रिंग वेरीज। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, देखो देखो, आप कंफ्यूज मत हो ना सर। अगर आप प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम देखेंगे, प्रेशर वॉल्यूम विल बी लीनियर फॉर अ लीनियर स्प्रिंग, बट वो क्या पूछा है? वर्क डन, वर्क डन, वर्क इज हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको समझ में आया सर? अरे यार, ये वो प्रेशर वॉल्यूम पे हाउ इट इज वेरिंग नहीं पूछा है सर। ऑन प्रेशर वॉल्यूम यू विल गेट दी करेक्ट और नॉट सर? इज इट ओके? है ना? वर्क इज वेरिंग विथ स्क्वायर ऑफ द एक्सटेंशन, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाउ डू यू फाइंड वर्क? वो प्रेशर वॉल्यूम पे नहीं पूछा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये एनीवन विथ इरोटेशनल, ओमेगा जेड इज गिवन बाय हाफ इंटू डो वी बाई डो एक्स माइनस डो यू बाई डो वाई. So if it is irrotational, this should be equal to 0. So ये half तो 0 हो ही नहीं सकता. So dou v by dou x minus dou u by dou y must be 0. So therefore dou v by dou x must be equal to dou u by dou y. This is the condition for irrotational. Dou v by dou x is equal to dou u by dou y. Is A correct, sir? Is A correct, sir? Yes, yes, yes. मेरा एक एक्सपेक्टेशन है सर, आई हैव कवर्ड दीज मेनी सेशंस, आई थिंक 4 सेशंस ना, 4 सेशंस, मतलब इतने टाइट शेड्यूल में भी मैं 4 सेशंस लिया, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है सर। सर आप लेट लाए, ये बहुत अच्छा है सर, मतलब आदमी का दिमाग सोच वैसा रहता है ना, भगवान वैसे ही उनको रिजल्ट देता है। हाँ, लेकिन ऐसा मत बोलो बेटा कि आप लेट लाए, ऐसा दुख होता है सर, एक आदमी जो सिंसियरली काम करता है ना, दुख होता है सर, सीरियसली, इट रियली हर्ट्स, रियली इट हर्ट्स। क्योंकि मैं अब तो प्लस पे 3 सब्जेक्ट्स, मेरा टॉम चल रहा है, मेरा फ्लूइड चल रहा है, मेरा थर्मो चल रहा है, वो सब छोड़ के फिर यूट्यूब पे आ रहा हूं, तो एक सोच लो आप। ओके, वेरी गुड। इज इट ओके? इज ए करेक्ट? मेरा एक्सपेक्टेशन है सर, इन 4 सेशन में एटलीस्ट आपको 8-10 क्वेश्चंस लगेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा, मिनिमम ऐसा लग रहा है सर। हाँ, ये करो। एनीवन? ठीक है बेटा, मैं आपको भी गलत नहीं मान रहा हूं, लेकिन मेरा भी देख लो ना। मेरा कौन देखेगा, मतलब मैं किस पोजीशन में हूं, यू टू सी ना सर, वो भी देखना पड़ेगा सर। वो नहीं देखते सर आप। हाँ देखिए सर जी, मोमेंटम देखो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस सर? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इंटीग्रल 0 टू डेल्टा 1 माइनस u by u infinity into dy. And what is momentum thickness sir? 0 to delta u by u infinity 1 minus u by u infinity dy. तो व्हाट इज एनर्जी थिकनेस सर? आई थिंक मैं भूल गया सर सारा, u by u infinity 1 माइनस u by, ऐसा कुछ था ना सर?
इज इट करेक्ट सर? इज इट करेक्ट सर? देखो अजय ने पूछा अगर रोटेशनल होता तो नेगेटिव है, इट डिपेंड्स वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो उस पर डिपेंड करेगा। नेगेटिव कैसा बोलेंगे सर? इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी वेक्टर, सो देयरफॉर मोमेंटम थिकनेस बोला है। आई थिंक ऑप्शन सी सही है ना सर? इज ऑप्शन सी करेक्ट सर? क्या ये ऑप्शन सी करेक्ट है सर? ये तो एनर्जी थिकनेस हो गया सर, वो मोमेंटम थिकनेस बोला है। इज ऑप्शन सी करेक्ट? बोलो सर, कुछ तो बोलो। हाँ जी सर, नेक्स्ट, कम ऑन कम ऑन, आंसर दीजिए सर, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आंसर दीजिए, हमें कंप्लीट करना है सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग कैविटेशन इन पंप्स? पंप्स में where do you expect cavitation when the pressure is very low? Where is the pressure very low? Suction के टाइम में, in the during the suction में suction, तो suction pressure कम होगा। If the pressure is very low, there will be if it is less than vapor pressure, there will be a problem of cavitation. तो he said to avoid, तो क्या avoid करना है? तो suction pressure को बढ़ाओ। So why the cavitation is occurring? Because of low suction pressure. Why the cavitation is occurring? Because of low pressure. Low pressure. When the liquid pressure drops down to vapor pressure, below the vapor pressure, then there is a problem of cavitation. So to avoid cavitation, suction pressure को बढ़ाओ आप, है ना सर? तो आंसर क्या है सर? High, yes, D is the right answer sir. कौन है रे ये? कौन है रे B बोलने वाले? Delivery pressure is already high. So pump will impart energy to the fluid, delivery pressure will be high. So will there be any problem of cavitation at the delivery? Cavitation क्यों हो रहा है सर? Because of low vapor pressure. Is it okay? So वो अगर रिएक्शन टर्बाइन्स की बात कर रहे हैं तो कैविटेशन कहां पे होगा सर? एनीवेयर इन द क्लास, पंप्स में एट द आई और इनलेट टू द सक्शन के इनलेट और इनलेट टू द पंप, बट वेयर इज द कैविटेशन अकरिंग इन, वेयर इज द चांस इन रिएक्शन टर्बाइन सर? Reaction turbines में it comes, the fluid enters at high pressure, so it loses its energy, develops work. By the time it leaves the runner को जब exit करता है तब उसका प्रेशर कम होता है। तो याद रखना, अगर वो कैविटेशन टर्बाइन में पूछ रहा है रिएक्शन टर्बाइन्स में, तो एट द रनर एग्जिट बोलना। अगर वो पंप्स में पूछ रहा है, एट द इनलेट टू द पंप और आई ऑफ द इंपेलर। ये बात समझ में आए सर? बैक मत बोलना सर, एट द रनर एग्जिट बोलना। टर्बाइन के पीछे ऐसा मत बोलो, एट द रनर पंप, रनर इनलेट, टर्बाइन के रनर इनलेट, ब्लेड एग्जिट, रनर एग्जिट। ओके? अरे यार बंद करेंगे सर, आप लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे सर। तो आई एम गोइंग सर, मैं चल रहा हूं सर, मैं निकला क्लास छोड़ के, है ना? मैं तो जा रहा हूं सर, आप लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। आई एम गोइंग। हाँ ये बढ़ो, ये बताओ सर। खमा एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे बेटा, विल नॉट वेस्ट अवर टाइम। ही इज आस्किंग स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन एंड पंप। सो द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इज, टर्बाइन डेवलप्स पावर, तो टर्बाइन स्पेसिफिक स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर, एंड पंप डिस्चार्ज करता है फ्लूइड को, तो देयरफॉर द पंप स्पेसिफिक स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। इज इट ओके सर? देखो, तो फॉर अ टर्बाइन इट इज n रूट p बाई h पावर 5/4, and for a pump it will be n root q by h power 3/4. I think option C is the right answer. Is it correct sir? Is it correct sir? बोलिए सर जी, बोलिए। बहुत बढ़िया, ये वाला देखो। हाँ, कम ऑन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, फटाफट कर दो प्लीज। कोई ट्रिक नहीं सर, प्लीज, मुझे तो ट्रिक नहीं आता क्योंकि आई एम नॉट अ ट्रिक मास्टर। सीरियसली आई डोंट नो सर। एक ही तो है सर, मैं सोचता हूं पावर। देखो, अगर कोई डाउट हो तो चलो कोई नहीं, ऐसे भी फर्जी भी पढ़ेंगे क्योंकि आपको ट्रिक्स ही चाहिए ना, फर्जी पढ़ेंगे। 5/4 3/4 तो याद है, 5/4 3/4 तो याद है। 5/4 कौन सा ज्यादा है रे? 5/4 ज्यादा है या 3/4 ज्यादा है? 5/4 ज्यादा है, करेक्ट ना? 5/4 ज्यादा है,
तो पावर अब अगर आदमी के पास होता है वो बड़ा होता है, तो पावर अगर आता है तो 5/4, डिस्चार्ज पावर से कम बोलो 3/4 बोलो। सो पंप विल डेवलप डिस्चार्ज, टर्बाइन विल डेवलप पावर। अगर टर्बाइन है तो पावर पी होगा। अभी कुछ बताना, मुझे तो नहीं आता सर, इतना ही मेरा ट्रिक यही है सर, बिकॉज आई एम नॉट ए ट्रिक मास्टर। ठीक है, चलो ये करो, कमान कमान, ये कर रहो, वो कर रहो, ये कर रहो रे। In a laminar bound layer over a flat plate, what will be the ratio of wall shear stress tau 1 and tau 2 at two sections which lie at a distance 30 and 90 centimeter? देखो, this is the plate and there is a laminar, ये पूरा laminar bound layer. So this is x1. क्या पूछा है सर? Anyone? What is asked in the question सर? ध्यान से सुनो, हमने क्लास में डिराइव किया था the wall shear stress is inversely proportional to square of the distance from the leading edge. This is the leading edge. The same thing अगर वह आपको बाउंड्री थिकनेस डेल्टा पूछता है तो डेल्टा लैमिनार के लिए, सुनो केयरफुली, डेल्टा लैमिनार के लिए इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। लेकिन वो shear stress पूछा है तो कैन आई राइट दिस एज व्हाट इज आस्क्ड, tau 1 by tau 2 पूछा है, तो tau 1 by tau 2 विल बी इक्वल टू, उल्टा होगा सर, 1 है तो यहां पे उल्टा होगा सर, सो देयरफॉर इट विल बी रूट ऑफ x2 बाय रूट ऑफ x1। सो उल्टा होगा सर, tau 1 by tau 2 इज उल्टा, सो tau 1 by tau 2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ x2। व्हाट इज x2 सर? 90, एंड व्हाट इज x1 सर? 30। सो देयरफॉर tau 1 by tau 2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका रूट थ्री। सो दिस कैन बी रिटन एज 3 power 1/2। आई थिंक सी आंसर आ रहा है ना सर? इज सी करेक्ट सर? इज सी करेक्ट? चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, सी सही है सर? वेरी गुड सर। हाँ, ये करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ ब्लो डाउन इन अ बॉयलर? ब्लो डाउन इन अ बॉयलर, एक्चुअली क्या होता है ना, मड, पानी में अगर मड, सेडिमेंट्स, सॉलिड वेस्ट एक्यूमुलेट होते हैं ना, स्केल्स फॉर्म होते हैं, सो इट विल नॉट अलाउ बेटर हीट ट्रांसफर। तो नीचे एक वाल्व होता है, और मड्स कलेक्ट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए वो वाल्व से हम क्लीन करते हैं सर। सो व्हाट इज द आंसर सर? व्हाट इज द आंसर? टू कंट्रोल सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉयलर। यस, सही है सर। तो देखो, सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस हैव टेकन, मैं ऐसे कॉम्बिनेशन लिया तो क्वेश्चन सेलेक्ट करने में तो टाइम लगता है सर, कोई टाइम पास के लिए तो हम नहीं आए। आपको समझ में आया सर? 1 मिनट आपसे बात करता हूं सर। आई हैव टेकन 4 सेशन सर, तो 4 सेशन एग्जैक्टली बीईएल के लेवल पे है या कुछ मैं अलग टाइम वेस्ट किया सर? तो देयरफॉर व्हेनेवर आई एम टेकिंग टाइम, डेफिनेटली क्वेश्चन सिलेक्शंस होता है, इट टेक्स टाइम, उसके बाद टाइपिंग को देना है, वो भी टाइम लेता है सर। थोड़ा आप सोचो सर, इज इट ओके? सेफ अटेम्प्ट मैं बोल नहीं सकता हूं सर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेपर। हाउ कैन आई से, अगर पेपर टफ आया तो मैं इतने अटेम्प्ट बोलूंगा तो मेंटली आपको क्या होगा, सर ने बोला इतने अटेम्प्ट करना, अगर पेपर टफ आता है तो सो इट्स ऑल रिलेटिव। सो ये सोच के मत जाना कि मुझे इतना अटेम्प्ट करेंगे तो सेफ है, ऐसा मत करो सर। ओके सर, चलो कम ऑन कम ऑन, कम ऑन सर, कम ऑन कम ऑन। एनीवन विथ 14th आंसर? देखो मेरे प्यारे बच्चों, generally agar these two ends are hinged and if I supply a compressive load, it will be pi square ei by L square. Very good. Where L is the actual length. What is the meaning of effective length? It is the unsupported length between the points of zero moment. तो अगर पिन जॉइंट है तो एक्चुअली दैट लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। लेकिन अगर देखो सर, इफ बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, तब क्या होगा सर?
आई थिंक यू आर गेटिंग दिस एज कुछ L/2 आ रहा है सर, इफेक्टिव लेंथ विल बी L/2। उस केस में क्या होता है सर, पाई स्क्वायर EI बाई LE square. Now LE is L/2 when both ends are fixed. So in that case it will be ये 2 square ऊपर जाएगा 4 pi square EI by L square. Very good sir. And one more thing, is it okay sir? If one end is fixed and other end is free, it will be 2L. Correct na sir? And if one end is fixed and other end is pinned, it will be L/√2 effective length. याद है सर किसी को? प्लीज लेट मी, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा सर फ्रॉम दिस, प्लीज बी केयरफुल, इससे इस पे से एक क्वेश्चन आएगा, मे बी मैच द फॉलोइंग और मे बी समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस सर? आई थिंक इट इज ये सवाल आ सकता है सर। इज इट ओके सर? अरे यार मैं भूल जा रहा हूं सर, तो आप मुझे करेक्ट कर देना। हाँ ये करो, मस्त क्वेश्चन है सर ये, प्लीज डू दिस। Come on, let's not waste time. Come on. Which one of the following statements is correct? Steady flow बोला है। For a steady flow, will there be any temporal acceleration, sir? For a steady flow, will there be any temporal acceleration, sir? No. तो देखो एक बार, temporal का मतलब होता है local. Temporal और local both are same. Is a uniform flow with local acceleration? No sir, there will not be any local acceleration. ठीक है। Has convective normal acceleration? What do you mean by normal acceleration? इधर देखो सर, प्लीज इधर देखो सर, इधर देखो, वो बोला है स्ट्रेट स्ट्रीमलाइंस। अगर स्ट्रीमलाइन ऐसा है तो देखो ऐसे ही जा रहा है सर, द फ्लूइड फ्लो इज अलोंग दिस, ऐसे ही जा रहा है। क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर? इज द डायरेक्शन चेंजिंग? नॉर्मल एक्सेलरेशन विल कम ओनली व्हेन द डायरेक्शन इज चेंजिंग। जब वो कर्व लेता है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन तभी आता है जब डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन ये स्ट्रेट स्ट्रीमलाइन है, सो वेन एवर इट इज अ स्ट्रेट स्ट्रीमलाइन विल द नॉर्मल एक्सेलरेशन कम सर? कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये तो स्ट्रेट है तो नॉर्मल नहीं आएगा। ठीक है, both normal and convective, tangential तो होगा ही नहीं because it is steady. So whenever it is moving like this, it will have only tangential convective acceleration. क्योंकि it is a steady flow, तो temporal acceleration will be zero. So याद रखना सर, whenever it is moving in a curved path, then you will expect normal, then you will get normal acceleration, that is v square by r आएगा सर। Is it okay सर? अच्छा क्वेश्चन था सर। Is it okay? Is it okay? बिकॉज ये स्ट्रेट है तो नॉर्मल नहीं आएगा, नॉर्मल तभी आएगा टुवर्ड्स द सेंटर व्हेन देयर इज अ कर्वेचर, व्हेन देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। इज इट ओके सर? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हम लाते हैं सर, कहां से लाना है? अब देखो, हमें कुछ सोर्स मिलता है सर, तो हम वो सोर्स से लाते हैं। ये करो, मेरा उम्मीद है सर 8-9 क्वेश्चंस तो मिलेंगे मेरे सेशन से, ऐसा लग रहा है सर मुझे। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे लग रहा है सर। आंसर दो सर। कभी भी याद रखना, whether it is isobaric or adiabatic, mixing is always irreversible. Mixing is always irreversible, and irreversible के लिए यूनिवर्स एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आप सवाल पूछ सकते हैं सर, हाउ डू यू नो मिक्सिंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस? इधर देखो सर, सपोज आई हैव one gas here, other gas here. You mix them. During mixing, neither you are giving any work nor you get any work. So during mixing, that is 1 to 2 is mixing, मान लो, work is 0. Forward process work is 0. But if you want to separate, you have to do some work. Means forward the work is 0, backward the work is not 0. Means forward, backward are not same, means it is irreversible. So whenever it is irreversible, so you know universe entropy change is always greater than 0. Okay, so therefore it is necessarily positive. Okay sir,
Is it okay, sir? Yes. एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स इज एंट्रोपी जनरेशन ओनली. ठीक है सर जी, ये ले लो, करो सर. डोंट थिंक दैट न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे. मैं हल्का सा एक दो न्यूमेरिकल्स दिया, क्योंकि क्या पता कल एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल देता तो, है ना सर. कमान 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 कमान. अच्छा क्वेश्चन है सर. हीट इंजन uses lake water at 12 डिग्री. सो द हाइयर, देखो इंजन बोला है तो मैं ऐसा करूंगा सर. व्हाट इज द हाइयर टेम्परेचर? 273 प्लस 12, आई थिंक ये आ रहा है 285 केल्विन. प्लीज, with folded hands I am requesting, don't use calculator. Do not use calculator. What is the lower temperature? 273 plus 2, 275. ठीक है. अरे रे रे रे. ठीक है. Ah, it executes 1080 cycles per minute. In 1 minute, these many cycles are undergone by the system. Okay. So the heat supplied is, how much is the heat supplied? 57 joule per cycle. The heat supplied is 57 joule per cycle. 57 joule heat supplied is 57 joule per cycle. So how many cycles are there? Sir, एक साइकिल में 57, कितने साइकिल्स हैं? 1080 साइकिल पर मिनट. तो नाउ यू हैव सो मेनी, देखो 57 इंटू 1080 मिनट मीन 60 सेकेंड. देखिए सर, सो मेनी, ये जूल है, ये सेकंड, मिनट को 60, एक सेकंड, ये कट गया सर. 6 1s करेक्ट ना सर? 6 7 42 आ रहा है, 6 8 48, 8 आ रहा है सर, 18 करेक्ट ना? करेक्ट ना सर? 6 0 0 का 6 1s तो 48, 68. वेरी गुड सर. 18 इंटू 57 वॉट आ रहा है सर. 18 इंटू 57 वॉट आ रहा है. एक्सलेंट सर. कैलकुलेटर मत लेना सर. डोंट टेक कैलकुलेटर. 18 इंटू 57 करो, कितना आ रहा है? डू नॉट टेक कैलकुलेटर. 8 7 56, तो आई थिंक 1026 वॉट आ रहा है सर. करेक्ट 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 करेक्ट. यस, कोई दिक्कत नहीं सर. तो पूछा क्या सर? आउटपुट ऑफ द इंजन कुछ नहीं देता तो आई टेक रिवर्सिबल. तो व्हाट इज द एफिशिएंसी सर? एफिशिएंसी इज टी हाइयर minus T lower by T higher, that is also equal to net work by heat supply. If nothing is given, I'll take reversible. Otherwise, if it is not reversible, ये equation नहीं आएगा. Higher temperature is 285 and the lower temperature is 275 by the higher temperature is 285, and that is equal to net work. What is the net work? We have to calculate by heat supply. It is 1026 watt. ये कितना आ रहा है सर? 10 बाई, देखो 10 बाई 285 इंटू ये इधर आना 1026, दैट इज इक्वल टू वर्क. कुछ कैंसल होगा क्या सर? कुछ कैंसल होगा क्या सर? कितना आ रहा है रे? कितना आ रहा है रे? 36 कुछ आ रहा है. आई थिंक यू आर गेटिंग कुछ 36. इज 36 करेक्ट? इज 36 करेक्ट? डॉक्टर ललिता है, देखो डॉक्टर ललित, बड़ा आदमी है वो. ये ले लो. ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे, ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे. Come on, come on. If moist air is sensibly cooled above its dew point. अच्छा. Let us take psychrometric chart. दिख रहा है सर? बहुत बढ़िया. So on psychrometric chart,
what is taken on the y-axis? Pranam, bade sahab. On this axis, what is taken? Omega or partial pressure of vapor. On this axis, it is dry bulb temperature. This is omega. ठीक है सर. क्या बोल रहा है सर? If the air is cooled sensibly, and if this is the initial point, this is sensible cooling. बट कहां तक कूल किया? अबो इट्स ड्यू पॉइंट, मतलब अभी हम ड्यू पॉइंट टच नहीं किए सर, मींस सैचुरेशन टच नहीं किए यहां तक. यू टेल मी सर व्हाट इज हैपनिंग. सो कूलली देखना सर मेरे प्यारे बच्चों. दिस इज वन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सो लेट मी राइट दिस एज phi2. This is another relative humidity, let us write as phi1. So you are moving towards saturation. When you are moving towards saturation, relative humidity is increasing. Means definitely phi2 is greater than phi1. देखो phi2 जब cool कर रहे हैं तो phi2 is greater than phi1. तो relative humidity is increasing. Relative humidity decreases, one is wrong. ठीक है. Wet bulb decreases, ध्यान से सुनो सर. देर इज अ वेट बल्ब टेम्परेचर, यहां पे इधर होगा सर. ठीक है. देखो नहीं ये तो इंथैल्पी है ना रे, कोई दिक्कत नहीं. वेट सर, वेट 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 वेट. देखो लेट्स टेक दूसरा कलर सर. आई टेक अनदर कलर. देखो दिस इज द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 2 एंड दिस इज द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ 1. तो क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है सर? एनीवन, व्हाट इज हैपनिंग सर? वेट बल्ब क्या हो रहा है सर? व्हेन यू आर सेंसिबली कूलिंग, व्हाट इज हैपनिंग टू वेट बल्ब? बोलो रे. वेट बल्ब क्या हो रहा है रे? कुछ नहीं बोलते. अरे यार इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां पे है, तो यू आर कमिंग डाउन, तो वेट बल्ब टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. सो वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीजेस, करेक्ट. इंक्रीजेस गलत है. ह्यूमिडिटी रेशियो ओमेगा, ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही है सर. ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट. देखो सेंसिबल कूलिंग में ओमेगा, ह्यूमिडिटी रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, सो ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट. सो 2 4 इज द राइट आंसर. एनीवन गॉट दिस आंसर सर? किसी को डी मिला रे? बहुत बढ़िया. स्लो रेट चल रहा है सर. वी आर गोइंग एट अ स्लो रेट. आई हैव टू कंप्लीट 50 क्वेश्चंस. देखो he says in the TS diagram shown in the figure, area or which of the area under the curve. देखो देखो अच्छा सवाल है सर. This is 0.1 and this is 0.2. क्या हो रहा है सर? So the process is occurring like this. What does area under the curve on TS diagram represent? This area represents heat transfer. Of course, reversible heat transfer. But now the sawal is total work done is gone. Degree of irreversibility gone. Heat absorbed heat. दोनों भी heat है. Now you tell me from 1 to 2, is it heat absorbed or heat rejected, sir? Anyone? Is it heat absorbed or heat rejected? So entropy is increasing. इसका मतलब heat absorb होगा सर. So in a reversible process, देखो ds is equal to d dash q by t. t cannot be negative. ये तो नेगेटिव अब केल्विन में हो ही नहीं सकता. देखो जब हीट सप्लाई कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो एंट्रोपी बढ़ेगा. जब हीट रिजेक्ट हो रहा है नेगेटिव, एंट्रोपी डिक्रीजेस. सो हियर द एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम S1 to S2. So as the entropy is increasing, it means it is heat supply. कहां गए रे? Heat absorbed during the process. I think B is the right answer. Anyone got the answer? कुछ तो बोलो रे, कुछ तो बोलो रे. फटाफट करो सर से, फटाफट कंप्लीट करो. Come on, come on. अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी शो कर रहा है बच्चे. बच्चे A refrigerating machine works on reverse Carnot cycle. It takes out 2 kilowatt heat from the system. Can you tell me what is that 2, sir? It is the refrigeration effect or refrigeration capacity. It is 2 kilowatt. ठीक है sir. From the system at 200 Kelvin. So the lower temperature is given as 200 Kelvin. ठीक है sir. While working between temperature limits of 300 and 200. So the higher temperature is 200 Kelvin.
and moreover he says Carnot. जब भी Carnot आता है, it is a reversible cycle, so no problem. What is asked? Power consumed and COP. For a refrigerator, the COP is given by, as it is a Carnot refrigerator, it will be T lower by T higher minus T lower. This should be used only when the cycle is reversible. So the lower temperature is 200 and the higher is 300 and the lower is 200. So I think you are getting it as 2. Is it correct, sir? 2. तो सीओपी पूछा है पहले, सीओपी एंड पावर, तो 1 1, ये गलत है, ये गलत है. नेक्स्ट. एंड व्हाट इज सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, सर? इट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बाय पावर इनपुट. कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली इट इज द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बिकॉज इट इज इन वाट, तो ये पावर इनपुट आएगा. तो व्हाट इज द सीओपी, सर? 2. एंड आरई इज गिवन एज 2 किलोवाट and the work input I don't know, so therefore what is work input, sir? It is 2 by 2, it will be 1 kilowatt. So answer is 2 and 1. 2 and 1 is the right answer. Is it okay? बहुत बढ़िया, ये ले लो. देखते हैं सर कितने लोग. प्लीज 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 फोकस ऑन दिस. फटाफट फटाफट, लेट्स नॉट वेस्ट. देखो, an ideal regenerative Rankine cycle approaches Carnot cycle. मैं क्लास में बताया था, सर. Ideal regenerative because regeneration improves efficiency. So ideal regeneration improves ideal efficiency. Ideal is Carnot, so it approaches Carnot. तो क्या होगा सर? What is Carnot efficiency? Carnot efficiency is T higher minus T lower by T higher. एक बार पावर प्लांट देखना, मैं बताया. So efficiency is given by what is the higher temperature, sir? Higher कितना है? 327. Convert in Kelvin. Add 273. 273 plus 27 is 300 plus 300 is 600. Minus lower is 27. 273 plus 27 is 300. By higher is 600, sir. So this is turning out to be 0.5 or 50%. So मेरे प्यारे बच्चों, ideal regenerative Rankine cycle approaches Carnot. ठीक है सर? ओके सर, ओके सर. बोलो सब लोग एक बार ओके सर बोलते जाना. वेरी गुड. ये करो. Soft bubble. For a soft bubble, the pressure difference is given by 8 sigma by d. Am I right or wrong, sir? अगर मैं भूल गया सर, सीरियसली मैं भूल गया सर. हाँ जी सर. सो डेल्टा पी, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस? इट इज 25. देखो एक बार, द प्रेशर इनसाइड अबव द एटमॉस्फेरिक, मतलब डिफरेंस बता रहा है. सो इट इज 25 is equal, no calculators please. 8 sigma I don't know. The bubble diameter is 50 mm. 50 into 10 की पावर -3. तो ये ले लो इधर. तो 125, 1250, 1250, 1250, मतलब 1.25 by 8 आना चाहिए सर. तो 0.1 खत्म सर, करने की जरूरत ही नहीं है. देखो, करने की जरूरत नहीं. 0.1, 0.1 तो एक ही है यहां पे. नो नीड टू डू इट. ये होता है सर. बहुत बढ़िया सर. 22 क्वेश्चन किया सर 54 मिनट्स में. बहुत बढ़िया रे, बहुत बढ़िया रे, बहुत बढ़िया. आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए. डा 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 डा. इंटरेस्ट शो कर रहा है, मतलब सिंसियरली पढ़ाएंगे तो बच्चे आएंगे. Bell-Coleman refrigeration cycle is also known as gas refrigeration cycle. It works on reversed Brayton cycle.
Brayton cycle is a gas turbine cycle. Bell-Coleman cycle is a reverse one. तो reversed Brayton cycle. Hope this is correct. आप क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर देना रे भाइयों बहनों, भाइयों बहनों. Yes, Shubham Baba. Von Karman. Come on, sirs. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. देखिए देखिए, देखो देखो, आप जानते हैं वॉन कार्मन इक्वेशन क्या है सर? वो याद है किसी को वॉन कार्मन इक्वेशन? मुझे याद है सर, टाउ नॉट बाई रो यू इंफिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टीटा बाई डी एक्स, ऐसा कुछ है सर. सी इज द राइट आंसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे प्यारे बच्चों. ठीक है सर, ये करो, ये करो, वो करो, ये करो रे. Wonderful, wonderful. A simply supported beam at its ends is loaded by a central load. Then the maximum bending moment is M. Okay. The same load is equally distributed over the beam. What is the maximum bending moment? वाह, आंसर दीजिए सर. अब आपका टैलेंट पता चलेगा सर. Now we can see your talent. दिखते हैं सर. देखो, there is a simply supported beam. And loaded by central load, मतलब central load. देखो देखो, let the central load be W. So what is the maximum bending moment, sir? I think इस केस में the maximum bending moment is given as M. What is the maximum bending moment? WL by 4. Am I right, sir? Am I right, sir? Yes. So the maximum bending moment is, I think this is correct, na, sir? Yes, yes, sir. Okay. If the same load is equally distributed over the beam, देखो what is the load, sir? What is the load? एक बार बताइए. What is the load? So 4M by L. Correct है, गलत है, sir? Is it correct? Now the same load is distributed. देखो, I will write this as, let the distributed load be W. What is this? So W into L, मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड प्लीज. हाँ, if it is W into L, that is W. मतलब क्या बोल रहा है सर? The same load is distributed over the length L. तो this can be written as W is equal to W by L. ठीक है सर. And you know when it is क्या बोलता है? The same load is equally distributed. If it is equally distributed, what is the bending moment, sir?
व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट? WL² by 8 कुछ ऐसा आता है ना सर, WL²/8. सो इन दिस केस द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज WL²/8. करेक्ट ना सर? मैं भूल गया सर, इज इट करेक्ट? अरे बोलो रे, मैं भूल गया सर. हाँ, अब देखो W max इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों, W, व्हाट इज W? देखो व्हाट इज W? कैपिटल W बाई L, कैपिटल W बाई L इंटू L²/8. ये गया. सो दिस इज WL/8. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एंड यू नो, ध्यान से सुनो सर. तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते सर? इधर देखो रे प्यारे बच्चों, इधर देखो प्यारे बच्चों, बोला मैं. तो कैन आई राइट दिस एज M/2 इज इक्वल टू, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना, WL/8. यस सर. तो सेकंड केस में WL/8 आया. सेकंड केस का मैक्सिमम इज WL/8. तो कितना आ रहा है सर? ये M/2. ये देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सर. सो आई एम ट्राइंग, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सर. सो आई एम ट्राइंग, देखो सही बोला. यस सर. वो सब ऊपर वाले की देन है सर, हम क्या हो सकते हैं सर. हाँ, ये बोलो, बोलो बोलो, बोलो रे बाबा, बाबा बोलो, बोलो रे बाबा. कम ऑन. नचिकेता नचिकेता नचिकेता. बोलो बोलो, बोलो रे बाबा, बाबा बोलो, बोलो रे बाबा. देखो, when a lubricating oil is forced between journal and bearing by external pressure, you know my dear students, hydrostatic bearing में क्या होता है? जीरो फ्रिक्शन. सो अपना प्रेशराइज्ड फ्लूइड से वेट लिफ्ट करने का कैपेसिटी आता है सर. इट इज हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग. समझ में आया सर? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स है सर, बहुत बढ़िया. बाय एक्सटर्नल प्रेशर. ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे, ये कर रो, वो कर रो, ये कर रो रे. One. When 40 and अच्छा अच्छा अच्छा, मैं when 40 and 25 are the dry bulb temperature of air entering and leaving the cooling coil, then the cooling coil temperature is 20. What is the, अच्छा, for sensible cooling? Sensible cooling ऐसा करो. The initial temperature is this, the final temperature is this, coil temperature is this. हाँ जी सर. What is the coil temperature sir? हाँ 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 हाँ, क्या हुआ? में कहीं गड़बड़ हुआ सर, डेटा में गड़बड़ हुआ सर, है ना? 40 and 25 are the dry bulb temperature of air entering and leaving the coil. Then the coil temperature, आप करो सर, पुट करो सर. 15 होगा, देखते हैं सर. आंसर मैच है तो कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज दिस टेम्परेचर सर? 40. This is 25 and this is 20. What is bypass factor? It is uncontacted factor, मतलब loss. Air is entering at 40, leaving at 25, but it should have reached 20. 20 reach करना था लेकिन नहीं हुआ, मतलब ये पूरा लॉस है सर. तो कैन आई राइट द बाईपास फैक्टर एज T2 माइनस T3 बाय आइडियल कितना होना था? T1 माइनस T3. वेरी गुड. सो द बाईपास फैक्टर इज T2 is 25 and T3 is 20 by T1 is 40 and T3 is 20.
I think you are getting this as 5 by 20 na. 5 by 20 is 1 by 4.25 है ना सर? है ना सर? है yes. I'll ask the question. अगर आप सेम डेटा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल बी योर आंसर? सो लेट अस अज्यूम दैट द डेटा इज करेक्ट, सो व्हाट विल बी योर आंसर सर? What will be the bypass? Very good, sir. Roshan is correct. So the efficiency will be 100% and the bypass factor will be 0. So efficiency plus bypass factor should be equal to 1. तो अगर वो completely ये reach कर रहा है, इसका मतलब it is 100%. Correct. बहुत बढ़िया सर. Okay? Good students of India. Very good students of India. ऐसे ऐसे बच्चे जिंदगी में देखे ही नहीं हम. हाँ देखो. Uncut chip thickness is T and chip thickness, deformed chip thickness is TC. Phi is the shear angle. Then what is the length of the shear plane? Bola re baba, bola re baba. बोल रे बाबा देखो देखो, मैं तो सीरियसली बता रहा हूं, वेदर यू रिमेंबर और नॉट, मैं जब प्रोडक्शन में एमटेक किया था बहुत दिन पहले, 20 साल पहले, नहीं 25 साल पहले, नहीं 24 साल पहले, तब का याद है मुझे. अब आपकी मर्जी, मेरा याददाश्त सही है या गलत है आपको करेक्ट करना है सर. कुछ ऐसा भूल गया सर, मैं भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, कुछ ऐसा है रे. दिस इज अनकट थिकनेस और डेप्थ ऑफ कट. अनकट कितना दिया? टी दिया. दिस इज द शेयर प्लेन, सो दिस एंगल इज शेयर एंगल. तो करेक्ट है गलत है सर? बहुत दिन पहले पढ़े तेरे. तो ये लेंथ पूछा है सर, सो ये लेंथ पूछा है, लेंथ ऑफ द शेयर प्लेन. तो लीजिए, क्या यह बात सही है? दिस लेंथ इज टी, दिस एंगल इज फाइव and this is length of the shear plane. क्या पूछा है सर? length of the shear plane. Sin phi is equal to opposite by hypotenuse. So LS is equal to T by sin phi. ऐसा कुछ आएगा. सही है या गलत है सर? You should tell because मैं बहुत दिन हुआ, सीरियसली बहुत दिन हुआ सर, मैं भूल गया. अगर ये गलत है तो मुझे ब्लेम मत करना, तो मेरा याददाश्त सही नहीं है बोल देना. ठीक है सर जी? इज इट करेक्ट सर? सीरियसली मैं पूछ रहा हूं सर, क्या ये सही है सर? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, दोस्तों 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 दोस्तों. वेरी गुड. ये भी तो क्वेश्चन है सर, लेकिन ऐसा है, कोल्ड वर्किंग कब करते हैं सर? जनरली एट रूम टेम्परेचर बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है सर? What is recrystallization temperature? It is that temperature at which new grains are formed and the microstructure changes. तो hot working के लिए above recrystallization temperature, cold working के लिए below recrystallization temperature. किसी को मेरे material sense के नोट्स चाहिए तो पूछो, जबरदस्त नोट्स लिखे हैं सर. तो cold working, where is this cold working? Below recrystallization temperature. हाँ रे बाबा, बोलो एक बार, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. अरे बाबा, खुशियाली बंदा खुशो की नहीं. वाह, मजा आ रहा है रे. मजा 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 मजा. ललित का भी शादी हो गया. कम ऑन कम ऑन. प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, क्लास के बाद सेशन, देखो सेशन देखते हैं वैसे ही जाते हैं. मतलब देखो, खाना खाते हैं होटल में, एटलीस्ट जो खाना बनाए उसको अच्छा हुआ खाना, एक रीत होता है सर. क्लास होने के बाद
कमेंट्स अभी नहीं, अभी मत करना, क्लास एंड होने के बाद कमेंट लीव करना, अच्छा लगा या बुरा लगा, दोनों ही बताओ। बुरा लगा तो बुरा बताओ, अच्छा लगा तो अच्छा बताओ, लेकिन कुछ तो बताओ, सो दैट इट मोटिवेट्स। ठीक है सर जी, हाँ ये करो, बहुत बढ़िया सर। अब थोड़ा तेज हो गया, देखो देखो देखो, एक सेकंड, 70 मिनट्स, मतलब एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ना सर, सो 70 मिनट्स बोल रहा हूं मैं, हाँ 60 + 10, 70 मिनट्स में 30 क्वेश्चन, मजा मजा मजा, ये करो। टरे टरे टाररा टरडा डा 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 टडा डा 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 डा। देखो, इन ए स्टीम पावर प्लांट व्हाट इज द आउटकम ऑफ रीजनरेटिव फीड हीटिंग? बताओ सर, इन रीजनरेटिव फीड हीटिंग आप क्या करते हैं सर? सो फ्रॉम द फर्स्ट टर्बाइन व्हेन इट एक्सपैंड्स, यू स्टॉप एट सम पॉइंट, देन यू ब्लीड, यू टेक सम स्टीम। तो वो, अब जब आप स्टीम लेते हैं, वो पूरा एक्सपेंड होने के बाद कंडेंसर में जाता है, तो डेफिनेटली कंडेंसर लोड विल डिक्रीज, तो ड्रेनेज फ्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा सर। देखो, देखो एक बार, इंक्रीज द स्पेसिफिक आउटपुट, गलत, बिकॉज आप कुछ फ्लूइड को ले रहे हैं, तो स्पेसिफिक आउटपुट घटेगा सर। लुक एट केयरफुली, बिकॉज यू आर एक्सट्रैक्टिंग सम स्टीम विच वॉज अबाउट टू एक्सपेंड, लेकिन वो उसको ले रहे हैं आप, जब आप ले रहे हैं वो कम वर्क देगा, फर्स्ट इज रॉन्ग। एंड इंक्रीज साइकिल, 100% करेक्ट, साइकिल एफिशिएंसी बढ़ेगा, इंप्रूव्ड क्वालिटी, नो, स्ट्रेट अवे ऐसा एक्सपेंड होगा, यहां से कुछ स्टीम ले लेंगे, तो ड्रेनेज फ्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा सर, ड्रेनेज फ्रैक्शन में, ये गलत है सर। रिड्यूस कंडेंसर लोड, यस, कंडेंसर लोड घटेगा सर, यस डेफिनेटली, तो 2 4 इज द राइट आंसर। एनीवन गॉट द आंसर एज सी सर? आग लगा दी, आग 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 लगा दी, वाह। अन्नू मालिक कौन है रे यहाँ पे? अन्नू मालिक कौन है रे यहाँ पे? हवा भी रुख बदल चुकी है, ना जाने तुम कब आओगे। Come on, 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 come on. Which one of the following is the correct statement? In cost estimation, at break even, ना फायदा ना घाटा, तो the cost of production is equal to cost of sales, total sales. C is the, अरे बाबा, ठीक है, चलिए। लगडक फुताना मुल्ला जातरा, टक टक मन, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सर। देखो सर, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको रुको, रुको जरा, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं लेने का। द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर लैमिनार एंड टर्बुलेंट, ध्यान से सुनिएगा, लैमिनार इज पैराबोलिक, टर्बुलेंट इज लॉगरिथमिक, वेट वेट वेट, laminar is parabolic, laminar is parabolic, laminar is parabolic, it's not linear, galat, turbulent, it's not parabolic, galat, it's not elliptical, galat, very good। तो अब बचा क्या है सर? 1/7 पावर लॉ। सर ये 1/7 पावर लॉ क्या है? तो एक्चुअली क्या होता है ना, इट इज आइदर लॉगरिथमिक और एम्पिरिकल रिलेशन से, एक एक्सपेरिमेंट से दे हैव फाउंड सम वैल्यूज, so u by u infinity is equal to like y by delta or like r by r power 1/7. That's why there was one empirical relationship developed, and the best profile that it is fitting for the distribution of velocity is 1/7 power law or logarithmic. Logarithmic भी सही है, 1/7 power law भी सही है। Is it okay, sir?
ओके सर, ये वाला लीजिए, ए वाला. एंड यू नो वेरी वेल, in laminar flow I have derived one equation. The shear stress is given by minus dou p by dou x into r by 2. एंड ये भी बताया कि इन लैमिनार फ्लो द shear stress varies linearly with radius. ये भी पूछ सकता है सर. तो व्हाट इज द आंसर सर जी? माइनस डो पी बाई डो एक्स. देखो दोनों सेम है, धोखा है, धोखा है. इज सी करेक्ट सर? Come on. Come on, come on, come on रे. करो. मैं तो डिराइव किया था सर, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर इज डिक्रीजिंग. माइनस डो पी बाई डो एक्स का मतलब क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रेशर इज डिक्रीजिंग. विस्कस लॉसेस को ओवरकम करने के लिए बताया था, बताया था रोशन दादा. अभी आप आ रहे हैं ना फ्लूइड को, अभी लैमिनार स्टार्ट हुआ ना, पता चलेगा आपको. ठीक है? एनीवन विद दिस आंसर? मैं चॉकलेट दूंगा सर अगर आप इसका आंसर, इफ यू गिव. कम ऑन, कम ऑन. कम ऑन रे. देखो, अरे टोपी निकाल दो, टोपी निकाल दो. टोपी निकाल दो. यस. अब लेखराज बोला तो सुनना ही पड़ेगा. हाँ सुनिए सर, ए पाइप ऑफ डायमीटर डी, मैं आपको क्लास में एक डेरिवेशन दिया था. इफ पाइप्स आर इन पैरेलल देन, देखो सर कुछ ऐसा दिया था. मैं बताता हूं सर. एफ एल क्यू स्क्वायर बाई, ये बताइए सर. वेट वेट वेट, मैं आपको लॉजिक बताता हूं बिकॉज विदाउट लॉजिक्स यू शुड नॉट बाय हार्ट सर. विदाउट लॉजिक्स यू शुड नॉट बाय हार्ट सर. देखो देखो, एक बार सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सुनिए. When can I call a pipe as an equivalent pipe, sir? When pipes carry same discharge and same head loss. ठीक है सर. देखो प्यार से देखो, देखो दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2. ठीक है सर. यहां पे दोनों भी डायमीटर डी दिया रे. स्मॉलर डायमीटर को स्मॉल डी ले लेंगे, स्मॉल डी ले लेंगे. हाँ जी. So it is carrying a discharge Q and the diameter is D. It is substituted by two parallel pipes each of diameter D. तो दोनों का डायमीटर C है, तो व्हाट विल बी द डिस्चार्ज इन ईच पाइप सर? अगर इसमें Q हो रहा है तो इसमें Q कितना होगा सर? Q by 2 होगा. Am I right? एंड इसमें Q by 2 होगा. वेट वेट वेट, वेरी गुड सर. If there are n number of pipes, n number of equal pipes, what will be the discharge sir? What will be the discharge? अगर n number of pipes, दो पाइप है तो Q by 2, 10 है तो Q by 10, n है तो Q by n. ठीक है सर. वेरी गुड. वेट, तो व्हाट इज द हेड लॉस? एफ एल क्यू स्क्वायर बाई 12 डी और 5, सॉरी यहां पे कैपिटल डी ले लेंगे सर. दिस इज द हेड लॉस. व्हेन कैन आई कॉल बोथ इक्विवेलेंट? यहां पे भी हेड लॉस सेम होना है, तो क्या होगा?
एफ एल, क्यू क्या है सर, क्यू बाई एन होल स्क्वायर बाई 12 स्मॉल डी पावर 5। तो एफ एल गया, तो 12 12 गया, ध्यान से सुनो, क्यू स्क्वायर गया, तो 1/कैपिटल डी पावर 5 इज इक्वल टू 1/कैपिटल डी पावर 5 इज, ये क्यू स्क्वायर गया, तो 1/n स्क्वायर डी पावर 5। एक्सलेंट सर। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी पावर 5 इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी पावर 5 इज n स्क्वायर, और कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज n पावर 2/5। वेरी गुड सर, इट इज n पावर 2/5। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज n पावर 2/5। बहुत बढ़िया सर, n पावर 2/5, बहुत बढ़िया। अब देखो सर, तो ये है सर, ये याद रख लेना सर आप, मैं क्लास में डिराइव भी किया था। अब n कितने दिया सर, नंबर ऑफ पाइप्स रिप्लेस बाय 2 पैरेलल पाइप्स, तो क्या होगा सर, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, n इज 2, तो 2 पावर 2/5, तो कितना होगा सर, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये 4 पावर 1/5 होगा। अरे यार समझ में आ रहा है सर, 2 स्क्वायर इज 4 पावर 1/5, 4 पावर 1/5, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनीवन गॉट दिस आंसर सर? मेरे प्यारे बच्चों, याद रख लेना, the original diameter by new diameter is equal to number of similar pipes power 2/5। ये सब पैरेलल के लिए याद रख लेना, ये सब पैरेलल के लिए। अगर पाइप्स सीरीज में है तो क्या याद रख लेंगे सर, इफ पाइप्स आर इन सीरीज, देखो एक बार कुछ ऐसा है, सो इफ दे आर इन सीरीज क्या करेंगे, तो L1/D1 पावर 5 प्लस L2/D2 पावर 5 प्लस L3/D3 पावर 5 इज इक्वल टू LE/DE पावर 5। ये याद रख लेना, इसी को बोलते हैं ड्यूपिट्स इक्वेशन। याद रहेगा सर आपको? प्लीज 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 कम ऑन कम ऑन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे क्वेश्चन ही नहीं दिया, मैं भी पागल हो गया। ड्यूपिट, देखो ये क्या है सर, द पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू गामा माइनस n बाई गामा माइनस 1 इंटू पॉलीट्रॉपिक वर्क। इज ए करेक्ट सर? शुड बी करेक्ट। कम ऑन कम ऑन। करेक्ट सर। गेट ये करो, कंप्लीट कंप्लीट। During a cycle comprising 4 processes, the heat transfer during 3 processes are 45 minus 30 minus 25. What should be the heat transfer during 4 processes so that the net work during the cycle is 0? You know very well, in a cycle, net work is equal to net heat. But already the net work is 0 bola hai. Very good. So Q net is equal to 0. What does Q net 0 mean? Total summation of Q should be 0. That is Q12 plus Q23 plus Q34 plus Q41, fourth process, should be equal to 0. What is the value of this? तो कितना आ रहा है सर ये?
ये है 15, 15 में से 25 निकालना तो -10 आ रहा है, तो Q41 शुड बी इक्वल टू 10. इज बी करेक्ट सर? ठीक है. फटाफट. कम ऑन डियर, कम ऑन डियर, कम ऑन डियर. देखो, ये बोल रहा है, नोजल बोल रहा है सर. इन नोजल velocity increases at the cost of pressure. So when the fluid flows, velocity will increase and pressure will decrease. When the velocity is increasing, the momentum of the fluid is also increasing because it is a steady flow. Energy must decrease. No, sirs. In nozzle, no one is supplying, no one is taking out energy. There is only transformation of energy from pressure to kinetic. सो एनर्जी मस्ट डिक्रीज. रॉन्ग. वेलोसिटी मस्ट डिक्रीज. अगर नॉजल में वेलोसिटी डिक्रीज का मतलब लोग हंसेंगे. प्रेशर मस्ट डिक्रीज. यस, यस सर, यस. मोमेंटम इज इंक्रीजिंग सर. नो, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर मस्ट डिक्रीज. इज इट ओके सर? हाँ जी सर. ये करो वो करो, ये करो रे, ये करो वो करो, ये करो रे. Make it fast, make it fast. Let's not waste time. Which of the following is correct? Floating body. When do you expect a floating body to be in stable equilibrium? When meta center is, देखो, ओरिजिनली बॉडी ऐसा है और बॉडी को आप ऐसा टिल्ट किए. वेरी गुड सर. तो एंड यू नो, अगर मान लो इफ दिस इज द न्यू बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी, मान लो ये मेटा सेंटर होगा, तो वेट ऐसा है तो क्या होगा सर? एंड ये ऊपर और ये नीचे, देखो समझ में आ रहा है सर? सो देयरफॉर इट विल बी ब्रिंगिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. तो मेटा सेंटर कहां पे होना चाहिए? मेटा सेंटर शुड बी अबव. समझ में आया सर? M should lie between J and no, 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 no. M ऊपर चाहिए, G और B. ठीक है. M should lie above. Is B correct sir? B is correct ना? Yeah. Very good. अगर completely submerged के लिए बोलो सर. For completely submerged बोलो सर. Anyone? Complete submerged, center of buoyancy should be above the center of gravity. वो भी थोड़ा देख लेना सर. वो भी थोड़ा देख लेना सर. वो भी थोड़ा देख लेना. ये this is a fixed link. Imagine this to be input link and imagine this to be output link. And this is the coupler. You tell me what is transmission angle, sir? What is transmission angle? And it plays a very important role in deciding the quality of motion. So transmission angle is nothing but it is the angle between coupler and output link. This is our transmission angle. So output link and coupler is the right answer. ये आ सकता, देखो सर, ये क्वेश्चन आ सकता सर. This can be expected, sir. This can be expected. क्वेश्चन नंबर डालकर आप आंसर दीजिए सर. ऐसा हल्का फुल्का मत कीजिए. क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर दीजिए सर. अरे यार, आज बहुत लोग देख रहे हैं मेरा क्लास. हम तो यूट्यूब पे आते ही नहीं, फिर भी हमें प्यार कर रहे हैं. बहुत अच्छा लगता है. देखिए सर,
which of the following information cannot be obtained from tensile test? Yes, modulus of elasticity, slope of stress strain diagram within proportionality limit will give me the modulus of elasticity or Young's modulus. ये बिल्कुल it can be determined. ठीक है. The toughness can also be determined because up to the fracture point find the area of stress strain diagram. तो ये भी we can determine. Ductility, yes, exactly. Percentage elongation, ductility can also be determined. How can I determine weldability? It cannot be determined from stress strain diagram. Very good. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर. विच इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स? ये सब में क्लोरीन है सर. ये सब में क्लोरीन है. वी डोंट यूज. सो वी आर यूजिंग नाउअडेज R134A. व्हाट इज R134A? टेट्राफ्लोरोइथेन ना, C2H2F4 ऐसा कुछ है. टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन, C2H2F4 I suppose. Yes. डिग्री ऑफ ड्राइंग. क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दीजिए सर. क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दीजिए सर. He has not asked drawing ratio. ये ड्राइंग रेशियो नहीं है सर. चेक करो एक बार. द बैटल इज बिटवीन. देखो देखो आप लोगों को डाउट आ रहा है. देखो एक बार ए और सी में. अब आपको मैं एक काम लगा दूंगा सर, क्योंकि ना एनीवे आप कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि क्लास के बाद जाएंगे, क्लास के बाद जाएंगे वैसे ही. तो इसका आंसर कमेंट में दे दो. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग रेशियो एंड डिग्री ऑफ ड्राइंग. एक आई डोंट नो, आई एम गिविंग यू हिंट, आई एम गिविंग यू हिंट. एक होता है इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल. अब मैं इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज में चाहिए इंटू 100. एरिया क्या लिखेंगे सर? मुझे पता नहीं सर, इसको डिग्री ऑफ ड्राइंग बोलते हैं, मुझे पता नहीं है. आपको पक्का कमेंट में देना है सर. देखो व्हाट इज एरिया? π/4 d1 स्क्वायर माइनस फाइनल इज π/4 d2 स्क्वायर बाई π/4 d1 स्क्वायर. तो π/4 गया तो d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर. ओ ये भी है, ये भी है. मैं कुछ नहीं बोलूंगा. एक होता है ड्राइंग रेशियो, एक होता है डिग्री ऑफ ड्राइंग. मैं आंसर नहीं दे रहा हूं सर, मैं इसका आंसर नहीं दिया. आपको कमेंट में देना ही. अरे बाबा मजा आया सर. बोलो. बच्चे बहुत शाने हैं. सेंसिबल हीटिंग ऑफ मॉइस्ट एयर विल नॉट अफेक्ट. क्या सिंपल क्वेश्चन है सर. सेंसिबल हीटिंग मींस विदाउट चेंजिंग ओमेगा. देना है सर प्लीज. जितने भी क्लास में देखे ना उतने लोगों को कमेंट देना ही है सर. ड्राइंग रेशियो क्या है और डिग्री ऑफ ड्राइंग क्या है? ड्राइंग रेशियो क्या है, डिग्री ऑफ ड्राइंग क्या है? मत दे सर, चुप ऐसे ही बोल रहा हूं, चुप ऐसे ही बोल रहा हूं. नो नीड, नो नीड. इट इज A1 माइनस A2 बाई A0. ठीक है, आंसर मत देना, लेकिन कमेंट में तो एटलीस्ट क्लास कैसा चला ये बोलो. ओके.
सी इज द राइट आंसर। करेक्ट, इसका नहीं, उसका। So sensible heating is which one will not affect the sensible heating? Sensible heating, sensible heating. तो क्या कांस्टेंट है सर? ओमेगा will not affect specific humidity. Yes. Next, ये करो। डिग्री ऑफ ड्राइंग पूरा एक्सप्लेन किया मैं सर। अब ना मतलब क्या हो रहा है सर? भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो लीव इट, लीव इट। कुछ ना कुछ काम तो आपको करना है सर। यू हैव टू डू सम वर्क। ये करो। ओ माय गॉड, मैकेनिक्स का क्वेश्चन। करो सर, देखते हैं। एनीवन आंसर दीजिए सर। समवन गेव द आंसर एज सी। बहुत बढ़िया सर। देखो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन सर? ये सही है सर? ये सही है सर? बिल्कुल सही है। नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, और एफ डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डीवी। इसको इंटीग्रेट करना ध्यान से। सो ये बताओ सर, ये एफ डी टी क्या दे रहा है सर? फोर्स एफ है और टाइम टी है। व्हाट डज एफ डी टी गिव? एरिया। एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ फोर्स। देखो, किसी भी पॉइंट पे अगर फोर्स एफ है और मैं स्मॉल टाइम इंटरवल ले रहा हूं, इफ आई टेक द स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, एफ डी टी विल गिव मी दिस एरिया। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, एरिया ऑफ एफ टी डायग्राम देगा। एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस डायग्राम सर? दिस विल गिव, करेक्ट और नॉट सर? दिस विल गिव मी द एरिया। ये पूरा, दिस इज area of a force, area of force time diagram, and that will be equal to mass is anyway constant. So what is integration of dv? Mass to constant hai. What is integration dv? V. So t1 v1 v2, so it will be final velocity minus initial velocity. Absolutely fine. So what is the area of this diagram sir? Area of this diagram, half into base is 5 and the height is 10. तो ये कितना आ रहा है सर? आई थिंक यू आर गेटिंग दिस एज 25. सो ये एरिया आ रहा है 25 इज इक्वल टू मास इंटू वी टू माइनस वी वन। व्हाट इज मास सर? 5 इंटू 5। क्या पूछा है सर? द फाइनल वेलोसिटी इज v2 and the initial velocity, initially it is at rest, initially it is at rest का मतलब 0, initial velocity is 0। तो ये कितना होगा सर? 25 इज इक्वल टू 5v2 और v2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इज इट ओके सर? किसी को आया सर ये आंसर? एनीवन गॉट दिस आंसर सर? कम ऑन, थैंक यू बेटा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। फोकस, फोकस। ये क्या है? इन ऑर्थोगोनल कटिंग द रेक एंगल इज 20 डिग्री।
and the rake angle. The friction angle is 25.5. Using merchant shear angle relationship, the value of shear angle is, answer sir. Anyone? कुछ ऐसा है ना सर, 2 times shear angle plus friction angle minus rake angle is equal to pi by 2, ऐसा कुछ सही है सर ये? Is it correct sir? गलत है. 2 times phi, beta is 25.5 minus alpha is 20 is equal to, ये कितना आ रहा है सर? 90 डिग्री. pi by 2 is 90 डिग्री. So 2 phi is equal to, ये 5.5 आता है, 90 minus 5.5 is 84.5 degree. So phi should be equal to 42.25 degree. Anyone got this answer, sir? ठीक है. अच्छा ये ऑलरेडी कर दिए. बैक पेन आ रहा है क्यों? What do you mean by बाकी के टेस्ट कहाँ पे मिलेगा? मुझे क्या पता आपको किस टेस्ट की बात कर रहे हैं? हाउ डू आई नो? मैं पागल हूं? यस सर. वाई बेंडिंग में आप आई सेक्शन क्यों प्रिफर करेंगे सर? एनीवन? रीजन बताओ सर. बेंडिंग में because when you are moving away from neutral axis the stresses are increasing, so keep more material. ठीक है सर? पास पहुंच गए रे. कुछ बात करूंगा सर इसके बाद, तो कुछ फ्यूचर प्लान्स बात करेंगे हमारे. बच्चे अच्छे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा, है ना सर? $57 का आंसर. What is point of contra-flexure? It is the point where the bending moment changes its sign. मतलब hogging से sagging और sagging से hogging and zero at that point. ठीक है सर? So C is the right answer. हाँ जी सर. ये करो देखते हैं सर. कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं मुझे देखना है सर. अच्छा मतलब आर दे कंडक्टिंग सेपरेट एग्जाम्स मिस्टर ललित? आर दे कंडक्टिंग सेपरेट एग्जाम? ओहो हो, मतलब आपका तो भला हो रहा है. हाँ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन in a thin walled pressure vessel with the modulus of elasticity E, Poisson's ratio mu, and diameter D, ball thickness subjected to internal fluid pressure. I think what is देखो देखो एक सेकेंड. वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल. तो इफ यू वांट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर डिफरेंशिएट करेंगे आई थिंक यू आर गेटिंग 2 times the volumetric strain is given by 2 times diametral strain plus longitudinal strain. So already you know the circumferential strain is given by the hoop stress is given by PD by 2T and the longitudinal stress is given by PD by 4T. If I put all those values and calculate, I think you should remember sir, you should remember sir, PD by 4TE. If you want I can derive 5 minus 4 mu.
आई थिंक ये आएगा सर, आई थिंक, डू यू वांट मी टू डिराइव? आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी। ये सही है सर? याद नहीं आ रहा सर, शुड बी करेक्ट, शुड बी करेक्ट। ठीक है सर जी। इसका 49 का आंसर दे दो। क्या करते ललित, उस पे हम कोई कमेंट कर ही नहीं सकते सर। What is the ratio of maximum displacement to the static deflection? And it is the magnification factor, sir. It is the magnification. इसका फिजिकल मीनिंग क्या है सर? स्टैटिक डिफ्लेक्शन के कंपैरिजन में एम्पलीट्यूड कितना बढ़ रहा है वो एक्चुअली दिखाएगा सर। सो देखो एक बार, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? इट इज एम्पलीट्यूड। सो स्टैटिक डिफ्लेक्शन के कंपैरिजन में हाउ मच इज द इंक्रीमेंट in the amplitude, that is given by magnification factor in our vibrations। ठीक है सर, ये फोर्सफुल वाइब्रेशंस में यूज करते हैं सर ये वर्ड। ठीक है सर, ओके सर, ये करो। फिफ्टियथ आंसर, 50th आंसर। देखते हैं सर, टैलेंटेड, युवक ఇంత టాలెంటెడ్ గా ఉన్నాడు। मुनिराज राय, क्या हो रहा है मुनिराज राय? सब लोग एक्सेप्ट धनंजय, सब लोग डी दे रहे हैं सर। पागल तो नहीं हुए सर आप? यू नो, एटलीस्ट ये बोलो, इज कैप्लन टर्बाइन अ हाई हेड टर्बाइन और लो हेड टर्बाइन? एटलीस्ट ये बोलो, इज कैप्लन टर्बाइन अ हाई हेड टर्बाइन और लो हेड टर्बाइन? Anyone? It's a low head turbine. Beautiful. So you know the specific speed is given by n root p by h power 5 by 4। अगर कैप्लन टर्बाइन लो हेड है तो एच जब लो है तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होना चाहिए सर? इट शुड बी हाई ना। सो कैप्लन टर्बाइन इज अ हाई स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन। सो जनरली कितना होता है सर उसका? थिंक 300 टू 600 या 300 टू 1000 ऐसा कुछ होता है। हाँ, यस, फ्रांसिस इज ऑलवेज इन द मिडिल। आई थिंक 60 टू 200 फ्रांसिस ऐसा कुछ होता है सर। इट इज अ मीडियम हेड एंड पेल्टन व्हील इज अ हाई हेड टर्बाइन। तो हाई, जब हाई हेड होता है तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होगा सर? कम होगा सर। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पेल्टन व्हील इज लो। प्रॉब्लम है फ्रांसिस नहीं होगा, ये कैप्लन नहीं होगा। अब ये दोनों में है सर। मेरे प्यारे बच्चों, if the specific speed is in between 8 to 30, it is a Pelton wheel with a single jet। तो if the number of jets are more, यहां पे n आएगा, ध्यान से सुनो। तो if there are n number of jets, यहां पे n आएगा, यहां पे n आएगा सर, यहां पे n आएगा। वेरी गुड सर। तो डेफिनेटली जब नंबर ऑफ जेट्स बढ़ रहा है तो ns भी बढ़ेगा सर। n इज डायरेक्ट, स्पेसिफिक स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट n। जब नंबर ऑफ जेट्स बढ़ रहा है तो स्पेसिफिक स्पीड बढ़ेगा। तो डेफिनेटली मल्टी जेट पेल्टन व्हील हैज मोर स्पेसिफिक स्पीड कंपेयर टू सिंगल जेट पेल्टन व्हील। तो ये सिंगल जेट का होगा। सो ये 30 टू 60 होगा आपका मल्टी जेट, मल्टी जेट। सो देयरफॉर यहां पे 40 दिया है तो इट इज अ मल्टी जेट पेल्टन व्हील। सब लोग लास्ट क्वेश्चन में धोखा खा लिए है रे बाबा। इज इट ओके सर? बी केयरफुल सर। कैसा लगा सेशन मेरे प्यारे बच्चों? 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सर, अच्छा लगा मुझे। सो आई हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम सर। अभी कुछ
मुझे बात करना है सर आपसे, आई वॉन्ट टू टॉक समथिंग विथ यू। करूं? 5 मिनट दीजिए, ज्यादा नहीं लूंगा सर, लेकिन कमेंट लीव करना सर। लिखराज मत बी, लेकिन सिस्टम जब चेंज होता है, अब इसरो के जब क्वेश्चंस देखेंगे, आप बोलेंगे सर कितना सडनली आप T20 फॉर्मेट से कितना सडनली आप वनडे को आ गए, फिर वनडे से टेस्ट मैच को कैसा अडॉप्ट कर लेते, आप देखते जाना सर। चलो, तो मैं सोच रहा हूं सर, तो एक्चुअली वी हैव लॉन्च्ड बैच ऑन इसरो फ्रॉम 4 जून, तो वो तो प्लस पे या फिर स्टोर्स पे अवेलेबल होगा। तो आपके लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ सम स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे तो हम सेशंस लेंगे, हमारा टीम पूरा लेगा, वो भी लेगा सर, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ यहां पे भी आएंगे, और वहां पे तो स्टार्ट हो रहा है, वो थोड़ा सिस्टमैटिक होगा ये, वेन एवर वी गेट टाइम, ठीक है। इसरो के लिए हम आपको अच्छा तो करवाएंगे सर, एंड ऑलरेडी हैव सेलेक्टेड सम वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन सिलेक्शंस तो चल रहा है सर, वो काम ओके सर। अभी आप क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरे से बताओ, यू जस्ट टेल मी व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। आई थिंक 4 सेशंस कंडक्ट किया सर बीईएल के लिए, देखो इतना टाइम दिया आपको सर। वाई इसरो हैज 6.84 सीजीपीए, प्लीज बता दीजिए, मुझे आइडिया नहीं है सर, प्लीज सीरियसली मुझे आइडिया नहीं सर उनका क्या है। तो वेन एवर यूर सीजीपीए इज लो ना, वो क्लियरली ये बताता है कि यू आर नॉट अ सीरियस कैंडिडेट, इट डजेंट शो योर इंटेलिजेंसी। तो अगर किसी को मार्क्स ज्यादा आए, इट डजेंट मीन कि ही इज हाईली इंटेलिजेंट। तो प्लीज ये मत सोचना कि इफ समवन इज गेटिंग गेट फर्स्ट रैंक वो हाईली इंटेलिजेंट है। सो ऐसा नहीं होता है सर, इफ यू मतलब उस टाइम पे वो टाइम में हुआ सर, इट डज इट मीन दैट हम क्या बोलते हैं हर एक क्वेश्चन जो भी देंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है सर, इट्स नॉट दैट। क्या हुआ? हेलो? हम प्रोवाइड करेंगे सर, बिल्कुल। लिए सेशन शुड कंटिन्यू। थोड़ा फार्मूला में गड़बड़ हो रहा है सर, तो उसके लिए कुछ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम विथ फार्मूला, आप अपना फार्मूला बुक लिख लीजिए सर, यू ट्राई टू राइट, सो दैट वेन एवर यू आर फ्री एटलीस्ट डेली एक हाफ एन आवर यू कैन रिवाइज योर फार्मूले। मैं कोशिश करूंगा सर एक एस जे वी एन, सतलेज सतलेज जल विद्युत निगम का एक सेशन, अच्छा सेशन लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा सर, ठीक है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आपने इतना रेस्पेक्ट दिए ये चारों सेशंस को, सीरियसली ये अभी तक जो सेशंस हुए ना, सब सेशंस को यू हैव रेस्पेक्टेड अलॉट। सो मैं मेहनत किया सर, आपने मतलब सीरियसली अपना उसको बहुत अच्छा रेस्पेक्ट दिए, तो आगे भी ऐसे ही देते ऐसा उम्मीद है, लेकिन आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम सर, मैं आगे भी और अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा इसरो के लिए, तो मैं बहुत मेहनत करूंगा सर, ठीक है। इसरो ऑलरेडी वी स्टार्टेड सर, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सर। 1 ईयर ड्रॉप हो गया है, गेट भी अच्छा नहीं हो गया, एग्जाम भी थोड़े थोड़े से मिस हो रहे हैं, प्रेशर में हूं काफी, कुछ बताए मंटू। देखो इट इट हैपेंस, यू शुड नॉट गिव अप, एंड कहां पे मिस्टेक्स हो रहे वो आइडेंटिफाई करो, एंड यू नो इफ यू गिव अप यू शुड थिंक व्हाई यू हैव कम अप टू दिस पॉइंट। तो आप थोड़ा रीडबल्ड एफर्ट से स्टार्ट करो अगेन, ओके। सो यू शुड नॉट गिव अप, मेरा ये है, सो एक ही बार दिया, थोड़ा अच्छा मेहनत करो, ठीक है मंटू। ईसीआईएल का भी सेपरेट एग्जाम होगा, उसके क्या अप्रोच होना चाहिए, हे भगवान। ईसीआईएल का तो मुझे पेपर्स देखना पड़ेगा सर, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया, है ना, तो आइडिया तो नहीं है, देखता हूं सर। हाँ, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पे बच्चों को क्लैरिटी चाहिए, गेट एग्जाम या फिर इसरो एग्जाम, ये बहुत बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, विल इट क्लैश विथ इसरो प्रिपरेशन, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स मेरे से भी पूछे हैं सर,
तो देखो, मैं जो बोल रहा हूं, मुझे कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तो नहीं आया सर। आई हैव नॉट रिसीव्ड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, बट वॉट एवर इनपुट्स आई हैव, इसको बेस मत ले लेना कि मतलब ये 100% सही मत बोलना। तो मैं बहुत सेफ्टी से स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो इसरो एग्जाम शायद उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मैं वॉट एवर द इंफॉर्मेशन विच आई गैदर्ड, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। उस इंफॉर्मेशन के अनुसार वी कैन एक्सपेक्ट इसरो एग्जाम इन द लास्ट वीक ऑफ डिसंबर और इन जनवरी। तो मेरे हिसाब से गेट का प्रिपरेशन आपको इफेक्ट होना नहीं चाहिए, बिकॉज सो साइमल्टेनियसली दोनों साथ साथ में होना चाहिए सर। आरआरबी जेई न्यूमेरिकल हेल्पफुल रहेगा, हाँ थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। विल गैप ईयर अफेक्ट एक्सेप्टेंस इन इसरो इंटरव्यू? ना ना, बिकॉज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए, लेकिन यू शुड जस्टिफाई द गैप, वो हम बताएंगे। तो गैप को कैसा जस्टिफाई करना, आई डेफिनेटली लेट यू नो सर। मतलब गैप को कैसे बताना है, हम है ना रे, हम किसके लिए है फिर? ओके तो ये मत बोलना कुलकर्णी सर ने बोला कि इसरो एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। मैं नहीं बोला ये, जो मेरे पास इनपुट्स आए, वो इनपुट्स सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। वॉट एवर इंफॉर्मेशन कल कुछ सोर्सेस द्वारा मुझे आया, सो मे बी इन दिसंबर ऐसा आया, ये इसको प्रचार मत करना, क्योंकि ना कुछ क्लिपिंग छोटा लेके सर ने ऐसा बोला। जब एग्जाम मान लो 1 महीने में होने वाला है, तो सर ने ऐसा बोला, इसीलिए मैं उसी अनुसार प्रिपेयर किया, सर ने मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया। वाह! इट इज वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। मैं वो सीख लिया सर। समझ गए? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, सेशन होने के बाद तो आप कमेंट लीव करना चाहिए, मतलब कैसा लगा सेशन। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं लाइक करो, शेयर करो, ठोको, ये नहीं बोल रहा हूं सर। मैं कभी नहीं बोला सर आपको। एंड और एक बात बताता हूं सर, मेरा सुपर 30 बैच इट्स फुल। तो बच्चे इतना मतलब इतना क्या बोलते हैं रेस्पेक्ट दिए और इतना कॉन्फिडेंस दिए, मतलब इतना क्या बोलते हैं फेथ है मेरे पे, सो उसको मुझे रखना है सर। एक स्टूडेंट को निकाल दिया सर मैं, लाइक बिकॉज ही वॉज नॉट सिंसियर। अभी 3 4 को भी कर रहा हूं। ठीक है, अभी कुछ पूछना है सर? नहीं ना? यू वांट टू आस्क एनीथिंग मोर? बोलो बोलो। व्हेन इज योर बीएल एग्जाम? 31st ना? तो डू यू वांट मी वन मोर फाइनल टच अप सेशन? डू यू वांट मी टू टेक वन मोर फाइनल टच अप सेशन? ना ना, अभी ना ना। आप बताइए सर, इफ यू से आई विल टेक, अदरवाइज अदरवाइज तो डिसाइड करता हूं सर, रात में डिसाइड करके, चाहिए तो एक सेशन ले लेंगे आपके लिए। ठीक है सर जी। एक बार ये 4 सेशन के क्वेश्चंस एक बार देख लेना सर, पॉसिबिलिटी है यहां से आने के। प्लीज, आई एम एक्सपेक्टिंग सर, मुझे लग रहा है 8 10 क्वेश्चंस तो आने वाले हैं सर, जो 4 सेशंस हम लिए। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। ठीक है, और कुछ? अरे पीडीएफ बोला, अरे पीडीएफ भी रेडी है, लेकिन इसका अपना जो यूट्यूब सेशन है ना, यूट्यूब का एक ग्रुप बनाया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वी मेड वन ग्रुप, उसमें शेयर करूंगा सर। ठीक है सर, चलो फिर आज के लिए बस इतना। खुशियां नी बंदा खुशों की नहीं। ओके, चलो फिर हम सेशन को बंद करेंगे रे बाबा। बार्क यूट्यूब ऐसा कुछ डाले थे हम। हम्म, एक गाना
कौन सा गाना गाऊं रे? खुशियां नी बंदा खुशो की नहीं। ओके, बच्चे खुश है, मेरे बच्चे खुश है ना? टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप पे है। चलो मैं सेशन को एंड कर रहा हूं, बाय बाय।